We have done question number up to 9 now of height and distance, chapter number 25. Now read question number 10. This is the first question in which you will learn angle of depression. Read. The bottom of a lighthouse and bottom of the mast of two ships are on the same straight line, and the angle of depression from the lighthouse at the bottom of mast of two ships are the bottom of the mast of first ship in 150 meter. Let us write by calculating how far will the mast of other ship from the lighthouse be and what will be the height of lighthouse be. So what is the question? You have a lighthouse, bottom of lighthouse and bottom and two ships. There are two ships. Here is angle of depression. Angle of depression मतलब क्या बताए थे? ऊपर से नीचे. तो ऊपर से नीचे एक बार देखेगा एक तो शिप को, फिर इधर देखेगा दूसरा शिप को. If the distance of the points at the bottom of the lighthouse and the bottom of the mast of the first ship is 150 meter, it means this is first ship, this is second, so first ship is at a distance of 150 meter, and we have to find what? Height of lighthouse. Right again. Height of we have to find the height of lighthouse and the distance of the how far will the mast of the other ship, yani second ship, from the lighthouse be, and what will be the height of lighthouse. Both we have to find both distance of second ship and also the height of the lighthouse. We will name it as A, B, C, D. So A, B will be what? Height of lighthouse, na? Height of lighthouse. BC is equal to 150 meter. Now there are two angles, 30 degree and 60 degree, na? 30 degree and 60 degree. So which one will be 30 degree? This one or this? This one, ना? जो सामने होगा वो एंगल बड़ा होता है. हाँ 30 ये वाला होगा और 60 ये होगा. ठीक है? Now see in this triangle ABC we know base and we have to find what? Perpendicular. Height, but in terms of triangle it is perpendicular. Perpendicular versus base. So which trigonometric ratio will be used? Tan theta P by B. You can see also L, ulta L ban raha. So we will write what? In triangle ABC, tan 60 degree equal to AB by BC, na? Tan 60 degree is equal to what? Root 3 AB by 150. If you cross multiply, you will get AB equal to 150 root 3. So you can write in diagram also 150 root 3 what? Meter. So height of lighthouse is 150 root 3 meter. Next we what we have to find? Distance of second ship from the lighthouse, not from the first. Distance of second ship from the lighthouse. So we have to find BD. BD ना, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल में काम करेंगे, बड़ा वाला ABD. इन ABD ट्रायंगल में काम करेंगे. हम लोग को क्या पता है? परपेंडिकुलर पता है और क्या पता करना है? बेस पता करना है. फिर से P by B लग रहा है, मतलब उल्टा L बन रहा. तो मतलब क्या हो गया? हम लोग को क्या लगाने वाला? tan थीटा. पहले इतना नोट कर लो, ठीक है? नाउ इन ट्रायंगल ABD tan 30 ना, क्योंकि ABD जो ट्रायंगल है इसमें कौन सा एंगल है? 30 डिग्री है, तो हम लेंगे tan 30 इक्वल टू क्या होता है? P by B.
So perpendicular is AB na, AB by base is what, BD. Now put the value of tan 30 degree is equal to 1 by root 3. AB 150 root 3 ना, who said degree, डिग्री कौन बोल रहा, यहाँ होगा बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो बी डी आपको क्या मिलेगा 150 इंटू 3 बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं, बोलो रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी रूट, हाँ रूट 9 इक्वल टू 3, घुमा के बोल रहा इक्वल टू व्हाट 450. तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, अच्छा पहले पूरा उतार लीजिए, उसके बाद आंसर लिखा के मैथ्स खत्म हो जाएगा. अच्छा एक चीज़ तो अभी तक हम बोले नहीं, और वो चीज़ हम लोग को लगेगा भी नहीं. एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम लोग क्या बोले थे, एक लाइन खींचेंगे ना, ये चीज़ मिस हो जाता तो अभी कुछ पूरा खराब हो जाता सब. एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बोलेगा हम लोग ऊपर में एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद देखो ये वाला 60 डिग्री है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम टच करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ 30 है तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री. ठीक है, इससे एक चीज़ और हम लोग सीख गए, बोलो क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन में वो वाला लाइन अगर हम लोग नहीं भी खींचेंगे तो भी आंसर आ सकता है, मैच बन जाएगा, है ना. लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला दिन बताए थे कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले क्वेश्चन में लिखा होगा तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब कंप्लीट हुआ सब, लास्ट में आंसर लिख लो, चलो रब कर दें. देखो इसी में थोड़ा सा दिमाग मार ले रहा है. हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू 150 रूट 3 मीटर, और क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड शिप, डिस्टेंस ऑफ सेकंड शिप फ्रॉम लाइट हाउस. इक्वल टू 450 ना मीटर. वन ऑफ यू चेक द आंसर, आंसर इज राइट. तो now question number 11 is also important question. Read. From a point on the roof of the fifth 5-storied building, and the angle of elevation of the top of a monument and that of angle of depression of the foot of the monument are 60 degree and 30 degree of the monument and the distance of the building from the monument. Then let us find the height of the monument and the distance of the monument from the building. क्वेश्चन समझ में आया, क्या लिखा है देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 5-storied बिल्डिंग मीन्स 5 माला बिल्डिंग का टॉप से एक मोन्यूमेंट है. मोन्यूमेंट मतलब कोई भी बिल्डिंग, इमारत है ना, जो हेरिटेज बिल्डिंग होगा उसको हम लोग मोन्यूमेंट बोलते हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गया. ठीक है, तो 5-storied बिल्डिंग से वो क्या कर रहा है, टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलना होगा क्योंकि नीचे से ऊपर देखा, और वहाँ 5-storied बिल्डिंग का टॉप से अगर नीचे देखेगा मोन्यूमेंट का तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से नीचे देखने से एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो दोनों दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री. इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर, मतलब जो बिल्डिंग में खड़े थे हम लोग उसका हाइट है 16 मीटर, तो हम लोग को मॉन्यूमेंट का हाइट बताना है और दोनों का बीच में कितना डिस्टेंस है ये बताना. ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दोनों चीज आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया, मॉन्यूमेंट लंबा है या बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट लंबा है, तभी तो उसका टॉप से फिर हम देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं. एलिवेशन कब बनता है, जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं. तो यहाँ पे मान लो ये मॉन्यूमेंट है तो ये क्या होगा, बिल्डिंग होगा मेरा. ठीक, बिल्डिंग का टॉप से हम लोग एक बार किसको देखेंगे, टॉप ऑफ मॉन्यूमेंट को देखेंगे, तो ये वाला क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. नीचे से देखे हैं ऊपर, और बिल्डिंग का टॉप से जब हम बॉटम ऑफ मॉन्यूमेंट को देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हम लोग क्या बोले, एक लाइन यहाँ खींचना पड़ता है,
समझ में आ रहा है? अब बोलो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया? 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है ऊपर वाला, है ना, 60 डिग्री, और 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो यहाँ भी एक बनाना होगा ना। डिप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो जगह एंगल बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और एलिवेशन में सिर्फ ऊपर। एक चीज़ और देखो, ये वाला क्या है, बिल्डिंग, इसका हाइट दिया 16 मीटर, तो ये वाला पोर्शन भी 16 मीटर होगा ना। हाँ, अब इसका नाम दे रहे हैं, देखो A B C D E। सो हाइट ऑफ मोन्यूमेंट इज व्हाट? हाइट ऑफ मोन्यूमेंट क्या होगा? CE होगा। अब CE में से देखो हम लोग को CD पता है, तो हम लोग को सिर्फ क्या पता करना है, DE पता करना है। D जैसे पता चलेगा हम लोग को क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ मोन्यूमेंट। और ये क्या है, BC? BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट। BC इज द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट। इसको भी निकालने बोला क्वेश्चन में, तो आप लोग ज्यादा हम लिख नहीं रहे, आप लोग खुद से लिखिएगा। AB इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, हाइट ऑफ बिल्डिंग, वहां पे लिखो AB इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग। लिखने के बाद इक्वल टू ऐसे दोगे 16 मीटर, और यहाँ पे इक्वल टू दे के लिखिएगा CD। क्या लिखे यहाँ पे आप लोग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 मीटर इक्वल टू CD। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो तो BC का नाम क्या होगा, BC विल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट। यहाँ लिखिए डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, और इक्वल टू, उसके सामने इक्वल टू देके क्या लिखेंगे, AD लिख देंगे। AD लिख सकते हैं या नहीं? यहां तक आप लोग लिख लिए, छोटा सा काम था इसलिए हम नहीं किया। अब देखो इस ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं क्या, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता चल सकता है, तो P और B का खेल में कौन आता है, tan आता है। और देखो यहाँ पे सीधा L बन गया है, और पहले क्या बताए थे, अगर उल्टा L बने या सीधा L बने, दोनों में क्या बनेगा, क्या लगेगा, tan लगेगा। सो इन ट्राइंगल ABC, ये वाला चीज पे तुम लोग को एकदम अच्छा सा आ गया होगा कि क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ABC tan कितना बोलो, 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। AB होगा 1/√3 इक्वल टू AB इक्वल टू 16, BC रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 16√3। So BC is what, 16√3। It means distance between building and monument is 16√3। तो ये भी 16√3 होगा ना, AD। ये तो डायग्राम से ही पता चल रहा है, BC और CD AD बराबर होगा, और यहाँ भी लिखा हुआ देखो BC इक्वल टू AD, और यहाँ बीच में क्या लिखे थे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट। ये वाला हो गया। अब देखो इस ट्राइंगल में आओ, इस ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर पता करना और बेस पता है, फिर से P और B का मामला है, तो क्या लगेगा, tan लगेगा। ये इस बार उल्टा L बन गया ना, तो यहां तक लिख लिया आप लोग। अब क्या लिखेंगे बोलो तो नबीला, इन ट्राइंगल नॉट एंगल, ADE। इन ट्राइंगल ADE। आगे का बोलो खुद से, tan इक्वल टू नहीं, tan पहले बोलो डिग्री 60 ना, इक्वल टू परपेंडिकुलर पहले लेंगे ना, DE बाई AD।
अब tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू DE पता नहीं हम लोग को, और AD पता है कितना 16√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के DE देखो तो कितना आने वाला है 16√3 इंटू √3, सो इट विल बी 16 इंटू 3, √3 3 होता है, और 16 3 जा 48। तो ये वाला कितना आया 48 मीटर। नाउ वी कैन से हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट इज 48 प्लस 16 and the distance between building and monument is 16√3 मीटर। इसको हम लोग लिख दे रहे लास्ट में, पहले बोलो पूरा मिटा दें। हाइट ऑफ monument इक्वल टू 48 प्लस 16 मीटर इक्वल टू कितना बोला 64 है ना। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन building and monument equal to 16√3 meter। check your answer। ओ राइटिंग का भी माया उड़ाओ, भाषा का भी माया उड़ाओ, सब उड़ाओ।